कम समय बड़ी तैयारी, कम समय बड़ी तैयारी, पढ़ लो बन जाओ, आगे बढ़ जाओ. After so long, we are having a live interactive class. All right. And I'm really, really grateful to God and each of the students here who have trusted us, who have taken the leap for next level of success. So, आप आगे बढ़ के आए और इस सिस्टम पे भरोसा किया, इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद. और भगवान का भी धन्यवाद कि भाई हम लोगों को भगवान ने इस बहाने एक आइडिया क्रिएट करवाया और आप लोगों के साथ जोड़ा. अगर आप मुझसे पूछें लास्ट 6 महीने पहले आपको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं. ये सब बस यूं ही होता चला गया. 6 महीने पहले मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ. तो आज की सेशन जो है वो अपने शुरू करेंगे एक छोटे से एक्टिविटी से, और वो एक्टिविटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. It is very, very important activity which we will try to follow in every session that we do. So why it is the activity that we have to do? We all are living in now a new world, which is a world of reel shorts. So what has it done to us? The one damage that it has done to us is this little finger has got a new shape. If you don't believe me, just check your little fingers. The shape has got changed. Compare it with other fingers. Feel your little fingers. You will see that we have decayed our little finger bones to some extent. And why it has happened? It has happened because of radiation in the mobile phones. Because most of us are holding mobile phones like this on little finger, right? So this one damage we have done. And maybe after 10 years, you will see that our little fingers have gone. Means it is just having a very, very thin bone. It may happen, or maybe some revolution will come in the mobile phone that little fingers will be rested on some covers. मतलब कवर में अंदर में उंगली घुसाकर शायद लिटिल फिंगर को बचाया जाएगा, ऐसा कुछ होगा. Secondly, what damage we have already done to ourselves is what it is. We have lost our focus, right? So on any particular thing, we are unable to stay for more than 10 seconds. And if in any case we are able to stay on anything beyond 10 seconds, that becomes viral. So in Instagram or YouTube, which reels or shorts are getting viral? The answer to that is those which are able to attract the audience for at least more than 10 seconds. So can you imagine the power of our focus? So wherever we focus, that reel becomes viral, that content creator becomes popular, they become rich. But what about you? You is henga, nothing for you. So you are giving your focus just for 10 seconds and you see how others are growing. But what if you start giving that focus to yourself? How it will change? Understood? आप समझ ही गए हैं what is Satish sir, what is SJC Institute, right? With just a little bit of how we do things, how we feel for you, you'll start understanding what is our emotion behind this crash course, right? थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ, बट एक्चुअल क्लास हिंदी में ही है. ओके, थोड़ा बहुत इंग्लिश चल रहा है, काफ़ी दिन बाद मिले ना, तो इंग्लिश ज़्यादा निकल रहा है इंप्रेशन जमाने के लिए. बट आई वॉन्ट टू शेयर सम बेसिक थिंग्स बिफोर वी स्टार्ट, and it will not be shared in each and every class, but today is being the first day, we have to clear it out. So the first question which needs to be answered now is, what is crash course? ठीक है, तो इसका आंसर देने के लिए मैं आपको सैंपल में एक डायग्राम से समझा रहा हूँ. ये डायग्राम है, समझो लेज का चिप्स पैकेट है, ठीक है.
इसके अंदर क्या होता है, ये इतना फूला हुआ क्यों है? बिकॉज इसके अंदर क्या है, फूला हुआ क्यों है? अरे कुछ तो एयर बोलिए। रहती है। एयर है, बट खाली एयर थोड़ी ना खरीद रहे हैं। एयर के साथ क्या है? एयर के साथ चिप्स है, राइट। सो देर आर टू थिंग्स हियर, एयर प्लस चिप्स। और इसमें क्या है, ये भी लेजी है बट ये फूला हुआ नहीं है। मानो अभी बस प्रिक किया, एक होल कर दिया और एयर निकाल दिया, तो क्या बच गया? चिप्स। चिप्स। अब एयर के साथ जो चिप्स है उसमें एयर क्यों मिलाते हैं? वाई एयर इज मिक्सड हियर? फ्रेश रखने के लिए, मतलब टू स्टोर, ज्यादा समय तक चलाने के लिए, करेक्ट। यस सर। लॉन्ग लाइफ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए। और हम्म। यहां पर एयर अभी अभी प्रिक करके निकाला, तो एयर निकल जाने से ये क्या बन गया? ये रेडी फॉर इमीडिएट कंजम्पशन हो गया, करेक्ट। फॉर यस सर। इमीडिएट कंजम्पशन। तो चिप्स किस में ज्यादा है, किस में कम है, थोड़ा बता दीजिए ना। दोनों में सेम है। दोनों में सेम है, बस। अभी खाना क्या है? हवा की चिप्स? चिप्स। चिप्स खाना है। तो बस आप समझ लो, ये आपका रेगुलर कोर्स था और ये क्रैश कोर्स है। अभी बात समझ में आई? तो यस क्या सर। चिप्स कम मिलेगा? क्रैश कोर्स में नहीं मिलेगा। बस क्या कम कर दिया? हवा कम कर दिया। हवा क्या हुआ सर? हवा मतलब जैसे जो रेगुलर क्लासेस पढ़ते हैं उनको पता है हवा मतलब क्या होता है। बहुत सारा, मान लीजिए स्टोरीज, बहुत सारा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, बहुत सारा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, बहुत सारा क्वेश्चंस जो सारा सिलेबस को कवर कर रहा है। और एग्जाम में नहीं भी आएगा तो भी पढ़ाया जाएगा, बट सिलेबस में दिया है तो पढ़ेंगे। और उसके अलावा क्लास में प्रैक्टिस टाइम। तो ये सब के कारण ये हो गया क्या? हवा। होमवर्क्स जो भी था वो भी कई बार क्लास में कवर किया जाता था, तो ये सबको हमने निकाल दिया। ये सब अगर हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? क्रैश कोर्स बन जाने वाला है, राइट। तो बहुत जन के मन में दुविधा है कि क्रैश कोर्स में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, जो ऐसे सोचते रहेंगे वो कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे। मेरा ये कहना है, कुछ भी नहीं हुआ तो भी आपको एक फोकस मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा। कब तक? एग्जाम डेज तक। मतलब क्रैश कोर्स हमने डिजाइन कैसे किया है, ये सोच के कि रेगुलर वाले बच्चे तो क्या होते थे, 6 महीना का वैलिडिटी, 12 मंथ्स का वैलिडिटी, 18 मंथ्स का वैलिडिटी ले लेते थे, क्लास खत्म हो जाती थी, फिर दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते थे, और उसके बाद तीसरे सब्जेक्ट में चले जाते थे। और फिर जब तक एग्जाम आता था तो सब्जेक्ट भूल गए, फिर कहाँ से पढ़ें, क्लास वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, फिर यूट्यूब में खोज खोज के इधर उधर इधर उधर पागल हो रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने बोला कि why not have a course which brings them back to their studies. But the thing was, we didn't want it just one subject to be flourished, because अगर मैं आपको ऐसा बोलता कि आपके एग्जाम के समय मैं आपको SCM सब्जेक्ट या SFM सब्जेक्ट पूरा फिर से पढ़ा दूंगा और उसमें 40 क्लास लूंगा, 50 क्लास लूंगा, तो आप एक ही सब्जेक्ट के रह जाते। आपको मैनेज करना है कम से कम 4 सब्जेक्ट, और जिनको दोनों ग्रुप देना है उनको मैनेज करना है 8 सब्जेक्ट। So when I was a student, I used to feel कि even if I am getting the best solution, even if I am getting the best solution for one subject, at the end I have to manage all 8 subjects, all 4 subjects. How will I do that? So I sat with my team of teachers and I worked around a 100-day schedule plan, which most probably you have got already. If not, we'll share it again in your group, which is guiding you how to plan your entire group in this crucial period. एंड उसके हिसाब से हमें एक सब्जेक्ट के लिए जितना समय वाजिब लगा उतना ही समय हमने क्रैश कोर्स के लिए रखा। बोले उसी समय में आपको अब पूरा गाइड करके हवा सारा निकाल के कराने का प्रयास किया जाएगा। एक नए एंगल से आपको हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे, करेक्ट। फायदा क्या है? फायदा अब आपको बताना है। फायदा ये है कि मैं बार बार नहीं बता सकता, फायदा आपको बताना है, फायदा आपको फील करना है। हम अपने स्टूडेंट्स को एक अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आपको कहीं पर भी लगा कि आपके लिए नहीं है तो 3 क्लासेस के बाद यू कैन विड्रॉ। बट इफ यू कम
ahead, what you will get along with this is there are, as per our schedule, 12 live classes which will be focused on concept discussion. कितना लाइव क्लासेस है? 12. ये मंडे टू सैटरडे चलने वाला है. अब जिनका लाइव क्लासेस मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. ठीक है. अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो अभी लाइव के साथ नहीं जुड़ पाए बट बाद में क्रैश कोर्स में आना चाहते हैं, तो उनको अपना सब्जेक्ट को स्वैप कर लेना पड़ेगा. मान लो अभी वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे एग्जांपल के लिए, तो हमारा 100 डेज शेड्यूल में मान लीजिए जिस समय पे लॉ का टाइम दिया हुआ है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस समय फिर आपको एससीएम करना पड़ेगा. तो अब आप 100 डेज शेड्यूल फॉलो करोगे तो आपका बाकी सब्जेक्ट भी सेट हो जाएगा. अगर आप मान लीजिए एससीएम का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, एसएफएम का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, बट आपका लॉ हिला हुआ है, तो लॉ के लिए शेड्यूलिंग तो करनी पड़ेगी. और वो शेड्यूलिंग हम लोग कैसे करेंगे, वो सोच ही नहीं पाते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं. पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे. तो हमने 100 डेज में पूरा डाल दिया. अब पूरा डाल दिया तो आपको अपना, अगर अभी मान लीजिए क्रैश कोर्स करने का मौका नहीं मिला, बाद में मिला, तो दूसरा सब्जेक्ट के साथ इस सब्जेक्ट को स्वैप कर लेंगे. और कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे बात करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे फिर से कि उस शेड्यूल में आप कैसे मैनेज करोगे. सो 12 लाइव क्लासेस है. ये मंडे टू सैटरडे चलने वाला है 2 वीक्स के लिए. पावर्ड बाई संडे को एक टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है रैपिड 30 टेस्ट. ठीक है. तो मंडे टू सैटरडे आएगा, फिर संडे रैपिड 30 टेस्ट होगा. और टेस्ट भी ऐसे ही होगा जैसे आप ऑनलाइन आए हो वैसे. ऑलराइट. किस किस चैप्टर का होगा वो सब 100 डेज शेड्यूल में लिखा हुआ है, बट फिर भी आपको ग्रुप में हम बताते रहेंगे. फिर वापस इसका सेकेंड पार्ट होएगा मंडे टू सैटरडे, और फिर संडे रैपिड 30 टेस्ट आएगा. कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है, आप सोचिए कि पढ़ाई भी की और टेस्ट भी दे रहे हैं. और रैपिड 30 टेस्ट क्या है? 30 मार्क्स का टेस्ट है बस. तो ज़्यादा लोड भी नहीं लगेगा कि अरे इतना टेस्ट के लिए मैं पढ़ूंगा कैसे. और उसका सिलेबस क्या होगा, जो मंडे टू सैटरडे में पढ़ेंगे उसी में से आएगा. करेक्ट. सर कॉपी चेक होगी? बिल्कुल, कॉपी चेक होके फीडबैक के साथ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप उसको समय रहते इंप्रूव भी कर सकते हैं. ऑलराइट. फिर ये जब हो जाएगा उसके बाद आपको हम, ये पूरा जब हो जाएगा, ये आपका हम कौन कितना कराएंगे, एक पूरा सीक्वल चलाएंगे आपका ऑल सब्जेक्ट्स का, मतलब 4 सब्जेक्ट्स का या 8 सब्जेक्ट्स का आप समझ लीजिए. ये पूरा सीक्वल चलेगा. दिस इज योर फेज 1. जिनका दोनों ग्रुप है उनको एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, और जिनका सिंगल ग्रुप है उनको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है. बट ये फेज 1 है क्रैश कोर्स का. फिर ये सारा जब खत्म हो जाएगा तब हम फेज 2 में आएंगे. फेज 2 में हम फिर से आपकी क्लास लेंगे, और उस समय आपका 2 डेज का फुल डे क्लास होगा. फुल डे मतलब सुबह से लेके रात तक. कितना घंटा अभी बता नहीं सकते, मतलब सुबह चालू होगा और रात को कितना बजे खत्म होगा मेरे को नहीं मालूम, बट 2 फुल डे चलेगा. समझ गए? वो भी शेड्यूल 100 डेज वाले में डाला हुआ है. और उसमें हम क्या करेंगे आपके साथ, उसमें हम आपके साथ करेंगे कुछ हमारे चुने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. समझ गए? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं सुपर 50 क्वेश्चंस फ्रॉम एंटायर सिलेबस, और या फिर आउटसाइड द सिलेबस जो हमें लगता है कि आपको पढ़ लेना चाहिए. वो सारा का सारा आपको हम यहाँ पे 2 फुल डे में कराएंगे. जो आपसे हो जाएगा वो आपको करने बोलेंगे, और जो मुझे लगेगा कि हमें करा देना चाहिए हम आपको कराएंगे. और वो उसके बाद हम आपका फिर लेंगे एक एक सब्जेक्ट का 2-2 पार्ट टेस्ट विच विल बी ऑफ 50 मार्क्स. पार्ट टेस्ट होगा 1 विच इज ऑफ 50 मार्क्स. पार्ट टेस्ट होगा 2 विच इज ऑफ अनदर 50 मार्क्स, जिसमें 50% ऑफ सिलेबस और 50% ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा. ठीक है. और उसका जब टेस्ट लेंगे तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप भी देंगे आपको कि आप सेल्फ स्टडी भी करके आ पाए. राइट. तो ये है हमारा फेज 2. कैन यू इमेजिन, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ये एक तरह का लास्ट मोमेंट रिहर्सल है. जो आपका मेन एग्जाम होता है ना, उसमें आपको हाईएस्ट में 2 ही दिन मिलता है पढ़ने को, अगर आप ग्रुप बाय ग्रुप जा रहे हैं. तो वो 2 दिन पढ़ेंगे कैसे, वो 2 दिन में कितना पढ़ेंगे, तो वो चीज हम आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे. तो अगर कभी भी मान लेना मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करा पाया 12 लाइव क्लासेस में, तो मेरे पास एक और विंडो है कि मैं यहाँ पे कवर करूंगा. राइट. तो आपको है ना, जैसे राजधानी में बैठ जाते हैं कि भाई अब यहाँ से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, तो बीच बीच में देखते नहीं उतर के, अरे ठीक चल रहा है ना, अरे सही पहुंचा देगा ना, अरे ड्राइवर सही चला रहे हैं ना. बस वैसे ही आपको इस क्रैश कोर्स की गाड़ी में बैठ जाना है. ये नहीं सोचना है सर सही पढ़ा रहे ना, अरे ये नहीं पढ़ा, अरे वो नहीं पढ़ा. उतना टेंशन नहीं लेना है. जितना पढ़ा है उस पर ध्यान देना है और उसको ग्रैब करना है कि मेरे को मालूम है मैंने क्या नहीं किया,
और मेरे पास सेकंड विंडो भी अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे पास एक जादू का विंडो है, वो है वीडियोस। मेरे पास हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर कॉन्सेप्ट का वीडियो है। नहीं है तो मैं फिर से बना सकता हूँ। तो इन बिटवीन अगर मुझे कुछ और भी लगा तो मैं आपको वीडियो से सपोर्ट कर दूंगा। सब कुछ इस लाइव में नहीं भी हो पाया तो मैं वीडियो से सपोर्ट आपको दे दूंगा, वो जब चाहिए होगा तब बता दूंगा। मतलब कहीं से भी कुछ छूटने वाला नहीं है, करेक्ट। और यहां तक भी हम रुकेंगे नहीं, इसके बाद आपको फिर थोड़ा सा गैप देके एक और फेज 3 में लाएंगे, जहां पे आपका 1 फुल टेस्ट लेंगे 100 मार्क का। सर टेस्ट का टाइमिंग्स क्या होगा, वो सब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। सर उस समय मैं नहीं आ पाया बाई चांस, जैसे सुबह सुबह टेस्ट हुआ तो अच्छा है, नहीं तो मैं नहीं आ पाया तो आप अपने हिसाब से टेस्ट देकर हमें आंसर पेपर जमा करेंगे। तो फिर हम आपको ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में टेस्ट के लिए नहीं बुला पाएंगे, फिर आपको अपने से टेस्ट देना है और हमें पेपर जमा कर देना है, उसका एक डेडलाइन दे देंगे। इसके बाद फुल टेस्ट के बाद हम आपका स्पेशल एमसीक्यू सेशंस लेंगे। मतलब हम आपका एमसीक्यू नॉलेज को भी रिफाइन कर देंगे, प्लस आपका जो ये टेस्ट्स वगैरह से हमें जो जनरल फीडबैक्स मिला वो हम आपको दे देंगे। एट द सेम टाइम आपका कोई भी इश्यूज हुआ, वो सब का सब आपके डाउट्स जो टेस्ट वगैरह से आपके अभी भी फॉल बैक्स आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे कवर करा देंगे। तो दिस विल बी डन फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। समझ गए? तो लास्ट का 10 डेज हमने इसके लिए रखा हुआ है, प्लस फीडबैक्स। और अगर मौका लगा, जैसे लास्ट टाइम तो मतलब हम लोग एग्जाम हॉल तक आपके लिए जाकर आए थे, वहां तक भी क्लियर्स खिला के आए आपको कि भाई अच्छा से करना है। तो इस बार मौका लगा तो फिर से जाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स कैलकाटा में जा पाएंगे। तो मतलब इसके बाद अब और क्या चाहिए आपको, मतलब अब एग्जाम हॉल तक छोड़ के आ गए, और क्या चाहिए? अब आपके बिहाफ में खाली लिखना ही बाकी रह गया था, राइट। तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री में नाम तो आप ही का छपेगा, जो लिखता है उसका नाम हो जाता है। अगर मैं लिख के आ जाऊंगा आपके बिहाफ में तो मेरे को डिग्री मिल जाएगा, तो मेरे को तो लेना नहीं है। आपको अपना डिग्री लेना है तो आप ही को लिखना पड़ेगा। तो लिखने का काम आपका रह गया, राइट। तो यू सी द पावर ऑफ दिस क्रैश कोर्स। नाम क्रैश कोर्स भी बहुत सोच के रखा, ऐसे बीच बीच में बहुत नाम सोचा, 12 कदम 20 कदम बहुत नाम सोचा, लास्ट में लगा नहीं, क्रैश कोर्स ही नाम ठीक लग रहा है। तो आप लोग जो जर्नी पे आए हो, वो जर्नी एक रिमार्केबल जर्नी है। डू नॉट कंपेयर इट विथ एनीवन एंड स्पॉइल इट। जस्ट बी faithful and trustworthy enough to just ride the एक class which we are going to discuss over here. Understood? I hope it is clear. So आप नॉर्मली जब कोई डिसीजन लेते हो तो बहुत बार आप फ्रेंड से पूछते हो कि ये करूँ क्या, तुम किया था क्या, तो आपको अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। यू वुड बी आवर ब्रांड एम्बेसडर्स, यू वुड बी आवर एडवोकेट्स, जो आप दूसरों को समझाओगे, और जितना आप समझाओगे उतना भगवान आपको दिखेगा। बोलते हैं ना, तुम 1 रुपया दोगे तो वो 10 लाख देगा। तो तुम जितना दूसरों को अच्छा समझा पाओगे, जितना दूसरों का भला करोगे, उतना भगवान तुम्हारा देखेगा, राइट। मैं क्या देखूंगा, देने वाला ऊपर वाला ही है, राइट। तो अपने ये पूरा का पूरा इस तरह से कवर करेंगे, बट इसमें आपसे एक एक प्रॉमिस चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको इसका फायदा ज्यादा होगा। मैंने हवा निकाला है तो आपको मेरे साथ जुड़ना है हवा निकालने पर। तो आपको पहला कोशिश करना है कि हर क्लास लाइव करें, क्योंकि क्या होगा लाइव में, नेचुरली फोकस लेवल हाई होगा, नेचुरली, ठीक है। बाई चांस लाइव मिस हो गया तो हम लोग सेम डे वीडियो दे देंगे आपको, कोशिश करेंगे सेम डे वीडियो देने का, तो आप उसी दिन कर लेंगे, रात तक चाहे 12 बजे तक आए, जैसा भी हो, ठीक है। सेम डे कवरेज। और अगर मान लेते हैं अगर आप लाइव में एनरोल ही नहीं कर पाए और आपको बहुत देर से पता चला कि अरे ये क्रैश कोर्स अब मेरे को करना है, तो एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेंगे एक स्पेसिफिक टाइम का, और वो शेड्यूल बनाकर आपको उसी समय पे करना है। ड्यूरिंग द क्लास कोई भी मोबाइल फोन ऑन ही नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल में क्लास कर रहे हो तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉल वॉल अटेंड नहीं करेंगे। पूरी दुनिया वालों में को बता दीजिए, खबर छपवा दीजिए अखबार में कि आपका अभी पढ़ाई चल रहा है, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। समझ गए? घर वालों को भी समझा दीजिए बीच बीच में कोई काम के लिए ना बोला जाए, वरना आप मेरा मंजुलिका वाला रूप देखेंगे। समझ गए? उनको जाके बोल देना है मंजुलिका जाग जाएगी अगर आप बार बार मेरे को छेड़ेंगे तो, ठीक है। थर्ड नंबर, क्लास में रनिंग नोट्स ले सकते हैं। व्हाट इज रनिंग नोट्स? रनिंग नोट्स मतलब आप, मैं बोल रहा हूं आप कुछ लिख रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रुकूंगा नहीं कि चलो अब इसको कॉपी कर लो। समझ गए? क्यों? क्योंकि फिर तो टाइम लग जाएगा ना, फिर तो कवरेज नहीं हो पाएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो चुपचाप बैठेंगे,
सुनने पे ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे, अटेंशन। हम लोगों का एक सबसे बड़ा बीमारी अभी चल रहा है, लैक ऑफ अटेंशन। तुम बोले ना 10 सेकंड में स्क्रॉल, तो दिमाग बोलता है 10 सेकंड से ज्यादा अटेंशन मैं इधर नहीं दूंगा, मैं दूसरा दूसरा जगह घूम के आ जाता हूँ। बॉडी यहाँ पर है, क्लास के सामने बैठ गए हो, लेकिन माइंड बोलता है हम कहीं और घूम के आते हैं। अभी भी आप कितना इतनी देर में मेरी ये सब बातें सुनते सुनते कहाँ कहाँ नहीं घूम के आ गए होगे, वो आप ही जानते हैं। तो आपको रनिंग नोट्स लिखना अलाउड है, ठीक है। अपने सामने एक कॉपी रखिए, जो मन करे पॉइंटर्स बना बना के एकदम शॉर्ट में लिख लीजिए कि सर ने ये एरिया को टच किया था, ये एरिया को टच किया था, सो दैट आपको मेरा कोई स्टोरी लाइन खाली याद रहे। उतना ही आपको अलाउड है लिखना। आपको हमारे जो बुक्स मिलेंगे, उस बुक्स में आप ऊपर से जो लिखना है बुक पे ही भर दीजिए पूरा। बुक में ही ऊपर नीचे आगे पीछे जहां जगह मिले भरते चलिए, मतलब एक सीक्वेंस में चलते चलिए, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में खुद ही नहीं समझ पाए। उतना बस खाली लहजा रखिए, बट फोकस मोर ऑन लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। मेरे से बात करिए, मेरे को चैट में रिस्पॉन्ड करिए। अगर आप लाइव मिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आप अटेंशन दीजिए, कोई बात नहीं है, अटेंशन दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अटेंशन, लिसनिंग। बिकॉज आप जितना लिसन करोगे उतना मेमोरी क्रिएट होगा। लिखने से क्या होगा कि आपको लगेगा मैं तो लिख लिया ना, अब मैं बाद में पढ़ूंगा। आप डिलेड मेमोराइजेशन करोगे, बट आप अटेंशन दोगे तो वो एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा खपक करके, ओके। और हम लोग मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो आप बाद में उसका प्रिंट आउट ही निकाल लीजिएगा। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो आप पूरा का पूरा मेरे से पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो आप पूरा प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट निकाल के कर लीजिएगा, आपका इच्छा। नहीं तो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप क्लास के बाद बैठ के उसको सजा लीजिएगा, राइट। तो ये आपको करना है। हर रोज जो सम्स वगैरह होंगे उसका कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर हाथ में जरूर रखना है, मुझे आंसर्स देना है। सम्स में जहां जहां मैं सॉल्व कर रहा हूं वहां पे रफली आपको सॉल्व करते रहना है। आई वुड प्रेफर दैट यू यूज मोर पेंसिल, इरेजर, शार्पनर व्हेन आई एम सॉल्विंग सम्स विथ यू, ठीक है। वाई आई विल गिव यू द लॉजिक इवेंचुअली, बट आई विल प्रेफर यू टू यूज मोर पेंसिल, शार्पनर, इरेजर रादर देन पेन, क्योंकि गलतियां होंगी ना तो पेन से आपको फिर काटना पड़ता है, और काटा हुआ देख के आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कॉन्फिडेंस कम हो। पेंसिल रहने से क्या, इरेज किया वापस ठीक हो गया, आप बोले हाँ आ गया आ गया आ गया, तो एक साइकोलॉजिकल चीज है। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन करना है और प्रेफर करना है पेंसिल, शार्पनर, इरेजर। और फेयर योर नोट्स ध्यान रखना आफ्टर योर क्लास, अगर आपको चाहिए फेयर करना आफ्टर क्लास करना है, और या फिर वो भी नहीं फेयर करना है, टाइम बचाना है, टाइम नहीं है कोई कारण से आप ऑफिस जाते हैं, तो टेक प्रिंट आउट्स। प्रिंट आउट्स देने में कोई नुकसान नहीं है। और प्रिंट आउट्स का बजट वगैरह मत सोचो, सोचो कि इस बार अगर पास हो जाए तो कितना बड़ा बजट सेविंग हो जाएगा, ये इमेजिन करो, है ना। प्रिंट आउट के लिए 1 रुपया 8 अन्नी 50 पैसा 25 पैसा के बारे में एकदम नहीं सोचेंगे, भर भर के प्रिंट आउट करा लीजिए। एक एक सब्जेक्ट पे 2-2 हज़ार रुपया का भी प्रिंट आउट हो जाए तो कोई डर नहीं होना चाहिए, मेरे को उसमें अच्छा मार्क्स लाना है, ये सोचना है, गोल पे फोकस करना है, कॉन्स्ट्रेंट्स पे नहीं। 6th नंबर, जो भी होमवर्क मिलेगा वो डेली करना ही करना है, करेक्ट। अब जैसे अभी मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको रनिंग में जो लिखना है आप लिख लीजिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को मत बोलेगा सर रुकिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं कॉपी कर पाए स्पेस छोड़ दीजिएगा, बाद में फेयर कर लीजिएगा। बस मैं चलता रहूंगा, मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। All right, I hope the idea is clear. These are the basic instructions which we are going to follow, and we will be picking up one chapter every day. Try to complete that chapter on the same day itself. If not, maybe because today is day 1, so we may carry forward it to the next day. But eventually, we will try that we complete at least 1 chapter in a day. For this crash course of SCM, I have 3 books. Actually, for each and every subject, we are working on 3 books which will be given to you. One book is your AIM 30 out of 30 MCQ Bank. ओके तो ये बुक आपको मिलेगा। जो भी हार्ड कॉपी में ऑप्ट किए हैं उनको कुरियर से आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, 7 to 10 डेज लग जाता है आने में, तो तब तक आपको पेशेंस रखना है। और एमसीक्यू बुक का अभी कोई ऐसा काम नहीं है, ये हम लोग टच करेंगे पूरा कोर्स खत्म होने के बाद। मैंने आपको दिखाया था फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, तो फेज 3 में टच करने का प्लान है। तब तक एमसीक्यू एग्जाम का जो आया वो हम कैसे करेंगे, वो आप अपने कॉमन सेंस से करेंगे, जितना आपको समझ में आया उसके हिसाब से करेंगे। मैं आपको जो होमवर्क्स दूंगा उसमें आपको जैसे जैसे बताऊंगा आप वैसे कैचअप करेंगे तो हो जाएगा। जैसे आज मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर का मैं बोलूंगा कि इस चैप्टर का जब होमवर्क करेंगे तो इसमें इसका एमसीक्यू यहाँ से अपने से करके आएगा, नॉट फ्रॉम दिस बुक बट फ्रॉम समवेयर एल्स, तो आपका वो टेस्ट का काम हो जाएगा, ठीक है। बट मेनली इसका फोकस है सिलेबस खत्म होने के बाद, मतलब मेरा फेज 1 फेज 2 खत्म होने के बाद, तो नॉट इन हरी।
सेकेंड बुक जो आपको दिया जाएगा वो है LMR, लास्ट मिनट रिविजन बुक, विच इज अ कलरफुल बुक actually. I think we have cut the budget for printing it in colors because we had to keep the cost of this crash course very low. So ये आपको again print out होकर घर पे आएगा। अगर आप हार्ड कॉपी में लिए, सॉफ्ट कॉपी में लिए हैं, तो ये सब आपको मैं ग्रुप में ही दे दूंगा। तो जिनका हार्ड कॉपी भी लिया होगा उनको भी सॉफ्ट कॉपी सब मिल ही जाएगा। और आज का जैसे जो चैप्टर है उसके लिए मैंने नोट्स ऑलरेडी आपको ग्रुप में डाल दिया है, नहीं मिला तो क्लास के बाद फिर से डाल देंगे। तो एक थर्ड बुक है जिसका नाम है दिव्य जड़ी बूटी, विच इज अ प्रैक्टिस बुक, विच इज आवर फोकस बुक फॉर फेज 1 क्लासेस। फेज 1 में हम आपको ये बुक कराना चाहते हैं। आप बोलेंगे अरे सर इतना मोटा हम कैसे कर पाएंगे? अरे मेरे साथ सब आप कर देंगे, आपको सोचिए मत, मोटा पतला पे मत जाइए। ठीक है, हमने अच्छी क्वालिटी का पेज यूज किया इसलिए मोटा हो गया है, बट वो एज सच कोई बहुत मोटा नहीं है। इसमें काफी सारे रिपीटेशंस भी मिलेंगे, हम लोग वो रिपीटेशंस धीरे 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 हटा देंगे। ठीक है, आपके साथ बात करते करते वो सब धीरे धीरे हटा देंगे। तो ये बुक क्या है, ये एक तरह का अल्टीमेट स्कैनर है। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और क्रैश कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोई भी कारण से, तो आप उनको ये बुक सॉल्व करने जरूर भूलिएगा। एंड आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि इस बुक का रेलिवेंस क्या है, वो आपको भी फील होने लग जाएगा। बट आप उनको भी प्रैक्टिस करने जरूर भूलिएगा। राइट, अगर आप मान लीजिए हमारा SCM का क्रैश कोर्स ले रहे हैं और SFM का नहीं ले रहे हैं कोई कारण से, तो SFM का भी आप ये बुक जरूर लेकर सॉल्व करिएगा। तो इट विल गिव यू नेक्स्ट लेवल ऑफ बूस्ट। और ये सॉल्व करना है, मतलब अभी एक बार तो हम लोग क्लास में टचअप करेंगे, बट आपको इस पे कमांड लाना है। दैट इज आवर फेज 1। फेज 2 के लिए हम आपको सुपर 50 का एक अलग से क्वेश्चन एयर बना के देंगे, वो अभी बना हुआ नहीं है, तो वो जब बन जाएगा तब आपके साथ शेयर करेंगे। ऑलराइट, तो दिस आर द बुक्स फॉर योर स्टडीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू पिक वन चैप्टर, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू राइट वन थिंग फॉर श्योर, विच इज योर एग्जाम पेपर पैटर्न। ठीक है, तो चलिए आप कॉपी में ये लिखिए SCM एग्जाम पेपर पैटर्न। SCM एग्जाम पेपर पैटर्न। अभी देखो क्या होता है, पेपर पैटर्न हम लोग स्टार्टिंग में जान लेते हैं ना, तो हमारा फोकस अपने आप नेचुरली बढ़ जाता है। तो पहला आप लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 30 मार्क्स का है, विच इज MCQ, 15 MCQ ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्या लिखना है? क्वेश्चन 1 MCQ, 15 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। राइट, तो मैं नया चीज क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें ये भी देखा गया है कि 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और 6 थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब समझ गए ना, आप अगर SCM का थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपका अटक सकता है, MCQ में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो सर ये थ्योरी कहाँ से पढ़ना है? वो MCQ बुक को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो वो अपने आप आ जाएगा फ्रॉम MCQ बुक इटसेल्फ। मतलब आपको अलग से इसका कोई थ्योरी का क्लास करने का दरकार है क्या? अभी नहीं है। ठीक है, रेगुलर कोर्स वाले को है, आपको नहीं। ओके, तो ये आपका 30 मार्क्स यहाँ पे आ गया। और ये सब मुंह जबानी याद होना चाहिए आपको, समझ गए ना? फिर आपको पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 8, कितने क्वेश्चन हुए? 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच, जिसमें से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट एनी 5। ठीक है, और आपको अगर मेरा स्टूडेंट कहलाना है, इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी कॉल्ड माय स्टूडेंट, तो यू विल प्रिपेयर फॉर 6 क्वेश्चंस, नॉट फॉर 5। प्रिपेयर फॉर 6, अटेम्प्ट एनी 5 इन एग्जाम। ठीक है, अगर आप रैंक का ख्वाब लेके चल रहे हैं तो प्रिपेयर फॉर ऑल 7, अटेम्प्ट एनी 5। ठीक है, अगर आपका रैंक का गोल है तो प्रिपेयर फॉर 7, अटेम्प्ट एनी 5। ठीक है, तो अपना गोल पहले निर्धारित कर लें। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आज तक अभी तक जो चलता आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का चीज डिफाइंड है कि 2 में क्या मिलेगा, 3 में क्या मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिसीजन मेकिंग चैप्टर का फिक्स किया हुआ है, विच इज ऑफ 14 मार्क्स। मतलब एक ही क्वेश्चन आता है उसमें 14 मार्क्स का। अब अक्खा इंडिया, इंटायर इंडिया क्या कर रहा है? वो इस 14 मार्क्स के पीछे अपना जीवन झोंक दे रहा है, डिसीजन मेकिंग सीखने का कोशिश कर रहा है, उसका प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहा है।
और दूसरा हमारा जो स्टूडेंट लोग है, जैसे कि आप लोग क्या करेगा, पतली गली पकड़ लेगा, मतलब इसको स्किप करके चलेगा, इसको लास्ट में करेगा। मतलब मेरा अगर प्रिपेयर फॉर 6 क्वेश्चन है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन मेरे तरफ से रिकमेंडेड ही नहीं, अनलेस इट इज वेरी 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 इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3A और 3B आपको मिलेगा। वो क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? सो 3A नॉर्मली आपको मिलता है ट्रांसफर प्राइसिंग से, और 3B मिलता है टारगेट कॉस्टिंग या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से। 3A लिखो ट्रांसफर प्राइसिंग, और 3B मिलता है, एक टर्म आता है टारगेट कॉस्टिंग, दूसरा टर्म आता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। मतलब टारगेट या लाइफ साइकिल, टारगेट या लाइफ साइकिल। बट ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी लगातार 2 बार टारगेट आ गए, ऐसा भी हुआ है। फिजा मैडम, अगर आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी अगर कैमरा ऑन करके रहेंगे तो आप मेरे नज़र में नेचुरली आ जाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that if you really want my attention on you, so your camera has to be on, otherwise मैं आपको पहचानूंगा कैसे? You'll just be a name for me. If you want to be my student, I need to know you ना, I need to see you, I need to recognize you, my brain has to tell me कि ये मेरा स्टूडेंट है। आपके मैसेजेस आएंगे ग्रुप में, आप कहीं करोगे तो मैं आपको रिकॉग्नाइज कर जाऊंगा, अकॉर्डिंगली आपको अटेंशन मिलेगा। बट अगर आप कैमरा ऑफ रखोगे तो आई विल नॉट नो यू। ओके, हाँ, अगर इंटरनेट इशू है, कोई इशू चल रहा है तो अलग बात है, इशू नहीं है तो आप आराम से ऑन रखो, कोई नहीं देखने वाला, कोई आपको ताड़ने में इंटरेस्टेड नहीं। समझ गए? ये सब भ्रम निकाल दीजिए अपने दिमाग से, को मेरे को देख लेगा, देख लेगा तो देख लेगा, क्या कर लेगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, JIT या थ्रूपुट, इन तीन में से एक आता है। 4A लिखो, 4A एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, JIT या थ्रूपुट। 4B 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 comes from a theory which is इंट्रोडक्शन टू SCM या क्वालिटी कॉस्ट या लीन अकाउंटिंग या वैल्यू चेन। इंट्रोडक्शन टू SCM या क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट या लीन अकाउंटिंग या वैल्यू चेन। तो कौन कहता है थ्योरी पढ़ने का दरकार नहीं? अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट ही नहीं होगा। और 4A ऐसा आता है जिसको देख के जीभ लबला जाता है कि ये क्वेश्चन तो करना ही है। 4A तो मतलब मुंह में पानी ला देता है, और 4B जो थ्योरी नहीं पढ़ते उसका लगा के चला जाता है। तो आपको लगता है हम दूसरा करें, दूसरा फिर हार्ड वाले में आप घुस जाते हो। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लास्ट जो जून 26 का हमने बना रखा था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अभी दिसंबर 26 में जो होने वाला है उसको हम लोग धीरे धीरे अनलिश करेंगे, बट ये स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न है। हर बार यही चैप्टर्स से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन में, बट आपका नसीब अगर अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है वो शफल कर देगा। तो 5 नंबर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसको हम लोग वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। समझ गए? तो ये पूरा 14 मार्क्स का आता है। ओ माय गॉड सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो मैं छोड़ के जाता हूँ और डिसीजन मेकिंग करने का सोचता हूँ, इसीलिए आपका नंबर नहीं आता है। नंबर जहाँ आता है वो पढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6A। 6A नॉर्मली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का आता है, LPP। 6A कहाँ से आता है? नॉर्मली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर सिमुलेशन से आता है। 6B असाइनमेंट से आता है एक टर्म ट्रांसपोर्टेशन से। बट ऐसा बहुत सारा टर्म आया हुआ है जहां पर सिर्फ असाइनमेंट ही आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं आया है, बट ऑल्टरनेट आप मान लो। क्वेश्चन नंबर 7A पर्ट CPM का कोई क्वेश्चन, और 7B में वापस से पर्ट CPM का ही क्वेश्चन, या फिर लर्निंग कर्व का क्वेश्चन, या फिर लर्निंग कर्व का चैप्टर का क्वेश्चन। राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब आप समझ रहे हैं, 3 चैप्टर ऐसा है जिसका 14 मार्क्स का वेटेज हो सकता है। यानी कि पर्ट CPM को आप अगर हल्के में ले रहे हो तो कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हो। 8A
मैक्सिमा मिनिमा, ओह हाँ सर यही तो हमसे नहीं होता, मैक्सिमा मिनिमा या फिर गेम थ्योरी, और 8B बिजनेस फोरकास्टिंग, या खाली फोरकास्टिंग लिख दिया मैंने। सो 6, 7, 8 ये आपका सिलेबस का एक पार्ट है जिसको अपने कहते हैं QT, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसका काफी सारा पोर्शंस आप लोग इंटर में भी कुछ ना कुछ पढ़े हैं, राइट? तो उसी का ही वर्जन थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस आता है 6, 7 और 8 में। तो आपको मेरे नजर में क्वेश्चन 2 छोड़ के बाकी सब प्रिपेयर कर लेना चाहिए अच्छे से। अब आप देख लीजिए आपका किधर कमी है, उसको आप अभी से कोई कलर से मार्क कर लीजिए, रेड कर लीजिए आप, कि इधर इधर मेरे को ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी ना तो मेरा एग्जाम मतलब वैसा ही जाएगा जैसा पहले जा रहा था, मतलब एवरेज ही जाने वाला है अगर आप रिपीट कर रहे हो एग्जाम टर्म। और यदि आप पहली बार दे रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका एक्चुअल में अभी वीकनेस किधर है। हो सकता है आपने क्लासेस खत्म कर लिया है, आपको अभी एग्जाम नहीं दिया हुआ है, तो पता नहीं आपका ये एग्जाम में आपका वीकनेस क्या है, तो वीकनेस को मार्क कर लेना है। दिस इज योर फर्स्ट गोल, और यहीं पे इंप्रूव करना है, यहीं पे वर्क करना है। जो जो चैप्टर कमी पड़ जा रहा है, स्ट्रेटेजी में नहीं कवर हो पाएगा वरना, तो उसके ऊपर बैठ के परिश्रम करके खत्म करना है, नहीं तो फिर वो बार बार बुलाएगा, आओ फिर से आओ फिर से आओ फिर से आओ। तो अगर आपको चक्रव्यूह में नहीं पढ़ना है तो इट्स बेटर कि यू इंप्रूव ऑन योर मिस्टेक्स राइट अवे। वंस यू डू दैट यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम, ठीक है? तो मेरे रिकमेंडेशन का मैंने आपको बता दिया, बट मैं ऐसा नहीं कि डिसीजन मेकिंग आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में काम आ जाएगा। अगर उससे एग्जाम में कुछ मैचिंग आ गया तो आपके बल्ले बल्ले हो गए, मेरे भी बल्ले बल्ले हो गए, तो आप ऑल्टरनेट में फिर जिस चैप्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उसको आप निकाल दीजिएगा, ठीक है? तो दिस इज आवर पेपर पैटर्न एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट ऑलवेज। और हर सब्जेक्ट का आपको ये याद होना चाहिए, नहीं याद है, याद करने का तरीका है स्टिकी नोट्स यूज करिए, बहुत सारा स्टिकी नोट्स मंगा लीजिए और स्टिकी नोट्स पे लिख लिख के चिपका दीजिए इधर उधर चारों तरफ, कि जब मन करे तो यहाँ पे जाके झांका तो दिमाग में बैठ गया। जितनी बार हम आप एक चीज को देखते रहते हैं हमें याद हो जाती है, राइट? स्टिकी नोट्स को यूज करिए, कंप्यूटर पे चिपका लीजिए, टेबल पे चिपका लीजिए, वॉल पे चिपका लीजिए, अलग अलग एरिया बना लीजिए, इस चीज का ये है, इस चीज का ये है, बिना झिझक के अलमारी में चिपकाइए, जहाँ चिपकाना चिपकाइए। जैसे मैं आपको 4 बार देखूंगा तो मैं आपको हमेशा के लिए याद रख लूंगा, उसी तरह से आप एक कॉन्सेप्ट को 4 बार देखोगे तो आप कॉन्सेप्ट को भी हमेशा के लिए याद रख लोगे। तो मेमोरी टेक्निक्स है वो स्टिकी नोट्स। और पतला वाला एक होता है वो इंडेक्स के काम आता है, वो कॉपी में कौन सा पेज में कहाँ पे जाना है वो देखने काम आता है। एक चौड़ा वाला जो स्क्वायर वाला आता है कलरफुल, वो स्टिकी नोट्स आपको मेमोराइज करने में हेल्प करता है, ठीक है? इट इज अ मेमोरी टूल, मेमोराइजेशन टूल। आप जो बोलते हैं ना मेरे को याद नहीं रहता, क्योंकि आपने ऐसा कुछ औजार यूज ही नहीं किया जिससे याद रहेगा, ठीक है? तो इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। Come some